to you. आप स्टार्ट कीजिए अपना लेक्चर. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, ma'am. Thank you so much for so profusely praising me. I think अभी मैं सीख ही रही हूँ और आप लोगों के सानिध्य मिलने से मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया है अपनी बात रखने के लिए. To start with, firstly, I'd like to congratulate a government PG college, Lohaghat, which is working in collaboration with Department of Higher Education at Uttarakhand in executing this wonderful national workshop, 1 week national workshop under the sagacious leadership of Chief Patron Dr. P.K. Pathak, Chief Patron Dr. Sangeeta Gupta ma'am. I'm also grateful to Dr. A.K. Singh, Dr. Shailin Kumar Singh, who has given me this platform to voice and articulate on this topic. At the same time, I'm also grateful to the organizing secretaries, Dr. Deepak Kumar Pandey. I think in absentia, I'd like to thank him. And at the same time, Dr. Archana Tripathi ma'am, who has been very kind enough to grace me with such praises. I'm really obliged and I'm really grateful to you, ma'am. So today the topic, sir, could you please flash the PPT? Shailin sir, if you could please flash the PPT. So today we are working on a topic called feminism. Okay. And when we speak of feminism, so there are so many things. Many of you might be thinking that feminism is essentially a field of inquiry which is out and out anti-male or which is against men, but it is not the case. So could you please scroll the slide, please? When we speak of feminism as an academic program or a field of scholarship, then we come to know that it explores not just the questions of differences, but also speaks about points of convergence, which we call as gender equality. To put it simply, we can say that feminism is an iconoclastic movement, a movement that is trying to break stereotypes. The stereotypes that believe that men are the superior race and women per se are the inferior race. So they are trying to bring a leveling plane for both the sexes. Now, when we speak of feminism as a movement and as an ideology, it is both empowering and liberating and has over the decades helped mainstream myriad women by instilling in them confidence and conviction. Through close engagement with an extensive variety of resources, reports, and case studies, all of you, I think, hopefully, all the participants shall acquire skills to address gender issues with sensitivity and will be able to deploy these intellectual insights in a plethora of fields. Moreover, the learners can enable change and facilitate empowerment of women by being gainfully employed in UN-aided agencies as well. So let's not look at this concept called feminism just as a discourse. Let's not just treat it as a disquisition. Let's take it seriously and employ it in our real life also, where we can empower our better halves, where we can engender sensitivity towards females, where we can also be change makers. Now, when we speak of the objectives, so could you scroll down, please? So could you please scroll down? Okay. Now, when we speak of the objectives of today's discourse, the first objective is to gain a deep understanding of the contexts and the milieus which lead or which have led to the rise of feminism. That is, we will trace the trajectory of feminism, what were the factors or what were the causes that led to feminism. Secondly, explore the gender ecosystem and its evolution. Third, comprehend and map feminist issues and debates. Okay. And the other one is build gender sensitivity and responsiveness. Whenever we treat an academic program, it has to have an impact, and that too a social impact. So if we go by the
entire discourse, we'll come to realize that there are so many unexplored areas which need to be treated, which need to be researched, which need to be documented, and which need to be treated with utmost sensitivity and responsiveness. Now, as far as the career avenues are concerned, many of you might be thinking that what is the point of discussing feminism out and out every time we come across women saying that men are superior and women are always treated inferior despite having all the qualifications, despite having all the merits. But we are never paid enough. If we speak of the workspaces, then we feel that we are always relegated to the background, that women are not given an equal opportunity, or women are not given an equal stake when it comes to appointments, or when it comes to jobs, or when it comes to payments, wages. Women are always denied their due. So, how can you make a change? So there are many career avenues that you can scroll through. First is you can become a gender specialist. Second, you can also become a human rights advocate. Third, everywhere, as of now, everywhere, every sector of the society, every sector, every organization, they are hiring counselors. So you could also be one of them. Then you have the opportunity to work with various UN-aided agencies as well, like you can work with UNDP. You have an opportunity to work with UNICEF. At the same time, you have an opportunity to work with UNIDO. Then you can also work as a research consultant. And there is more to it. You can be a policy analyst in government, social media manager, a journalist, a human resource associate in recruitment. In the sector of higher education, also, you can give your services. And at the same time, you can become a woman's lawyer or a law enforcement officer. So these are the various career avenues that you can look forward to. So don't treat this very topic, feminism, just as a discourse or just as a lay topic. There are many more things. There are many aspects to it. If you follow it with sensitivity, if you follow it with responsiveness, then definitely you can bring a huge change. So could you please scroll the next one? Now, the learning outcomes of this would be, it would equip the learners with a sense of critical inquiry of how they can catalyze change. First is all the participants, you have to have a sense of critical inquiry, and only then can you bring about change. Secondly, you can help break these stereotypes. We'll discuss about it in our later modules. I'll tell you that the entire discourse is divided into 4 modules. We'll be sharing it gradually with you. So the first module will deal with the trajectory of feminism. What is it about? The second would be dealing with the various waves of feminism, the various waves as in the various phases of feminism. The third module would deal with the kinds of feminism or the various strands of feminism. As of now, you are just dealing with the very word feminism, but there are many roots and there are many branches to it. For instance, you have liberal feminism, you have radical feminism. Then of late, there are many more new terminologies, new nomenclatures coming up. For example, you have Amazon feminism, you have I-feminism, then you have abolitionist feminism, chicana feminism. At the same time, you have standpoint feminism, intersectional feminism, for feminism. And as of now, you have a very, one could say, a very flimsy feminism that is known as guerrilla feminism. So there are many strands to it, which we will come to it in module 3. Then finally, module 4, that could be a very interesting one. And you would understand that why it is becoming so important. Why are we treating women issues with so much of, why are we giving so much of attention, importance to women issues as of now? Because the 4th module, the 4th quadrant of our talk, it shall deal with the discriminatory and harmful practices against women. And that would actually be a very big eye-opener for all of you. We just know about dowry, we just know about acid attacks, we just know about
female feticide, but there are so many other things which are happening across the world that you would be literally flabbergasted at the fact that there are so many atrocities, that there are so many atrocities and so many exploitations that women have to undergo. So we will come to it gradually. Now, when we speak of the third learning outcome, it will hone your analytical skills that are effective in many different careers. So, as all of you know, that one, when becomes an academician, or when one is in the field of scholarship, one needs to have not just intelligent quotient, one also needs to have an emotional quotient. And for that, you need to develop your analytical skills as well, which would help you leg up in your career. So it has to go side by side. In addition to the intelligent quotient that you possess, you ought to have an emotional quotient as well. The fourth would be learners can facilitate change by raising community awareness about women emancipation. Now, there's another word to it, feminism, like we've already spoken of. Feminism is basically not just an empowering concept, but at the same time, it's a way to emancipate women. Emancipate women, that is, if you work at the grassroots, then you can bring about community awareness. For instance, Uttarakhand has various Mahila Mangal Dals. So they've been constantly working towards women issues. They have been constantly raising awareness. For instance, you have the Chipko Andolan, which Uttarakhand is known for. And Sundarlal Bahugana ji, he has been associated to it, but you have a lady also to it. And that realm of feminism is known as ecofeminism. Okay, so you will get to know gradually that how women have been women have played a key role in raising community awareness at their level. Then fourth is build competence and competitive skills among the learners to address gender issues with sensitivity. And finally, create a fair and just society for all. Today, as all of you know, that we are living in a democratic setup. But more than a democratic setup, we look forward to an egalitarian society. We look forward to live in a just society, a fair society. And a society can be called fair and just only when you have equal opportunities for both the sexes, be it males or females. And today we have also identified another category of, not exactly a category of people, but we have also identified LGBTQs as that LGBTQs should also have an equal stake in the society. So a society can be called fair and just only when both the sex, when every sex has an equal stake in the society. So could you, yes, Amit, yes, absolutely. We've already spoken of Chipko Andolan. Okay. So now this is very interesting. Can I have some inputs from your side? आपकी तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी तरफ से कुछ इनपुट आएगा? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज. If at all आपको कुछ चेंजेस चाहिए हैं, आपके समझ में आ रहा है? Anybody, if you want to raise any questions, queries till now? Okay, Amit, you could just post a yes in the inbox. आप लोग messages कर सकते हैं please. Gaura Devi ji, exactly. Okay, so now we are coming to the 50, not 50 but 60 shades of feminism. Okay, now as of now we've been just discussing what feminism is, but when we look at it at a larger frame, you have not 50 but you've got 60 shades of feminism, like this one. The first is abolitionist feminism. It speaks of going beyond the prisons. It speaks of providing a humane environment to women who are leading life in the prison. Okay. Second is the Amazon feminism. Like I told you, Amazon feminism, it celebrates women's strength, women's heroism. As of now, we think like men. Heroism and strength, they are identified as qualities or attributes of men. But Amazon feminism, it speaks of women.
It speaks and it celebrates women heroism. For instance, you have women working in as soldiers, you have women in combat roles, you have women working in as firefighters, as lumberjacks, as athletes, as strugglers. So all of these women, they come into the category of Amazon feminism. So here we are celebrating heroism of women. Heroism again is a gender neutral word. You cannot. The sad part is we identify hero or heroism with only males. But Amazon feminism, it breaks this stereotype. It breaks this thing that identifies heroism with masculinity, that identifies heroism with maleness. Okay, so this is a new terminology that we've come across. Then you have anarcho feminism, anti-war feminism, black feminism. This is again a very new concept, black feminism. Like you've heard about apartheid. Apartheid is what? Apartheid, that was color discrimination that was practiced in Africa, right? And against which Nelson Mandela fought. He led a huge movement against, okay, the apartheid movement. So similarly in feminism also, right now we are saying that it's only women. It deals only with women, men against women. But black feminism is essentially a movement wherein the black women, the darker women, are being exploited. They are being maltreated or mistreated by the white women, because the white women, as the word says, the color white, it signifies racial superiority. So there is a constant tussle between one section of women with another section of women. That is, white women maltreating or mistreating the black women. So that is why they are saying, the black feminists, they are raising this point. They like Cynthia Enloe. These people are saying that, or for that matter, you had Kumari Jayawardene from Sri Lanka or Uma Narayan from India. All these women have raised this issue that there is a section of women who feel they are being neglected, who feel that they are being denied their dues. By whom? By the white women. Okay. Now, next is you have Chicana feminism. Again, very interesting feminism. This is actually deals with Mexican American women. Okay. So these women actually belong to Mexico, but they are at the moment living in America. Okay. So now they want to assert their identity. They want to be Mexican and at the same time they want to be Americans. But there are certain conditions which, they feel discriminated against. They are not accepted by the American society. So they are constantly challenging the American society for themselves and are trying to assert their identity in the American society. So this Chicana feminism, ये चलन भारत में भी खूब आ गया है जी अमित जी. Exactly, आपने देखा होगा फेयर एंड लवली का कॉन्सेप्ट. अगर आप ब्लैक का बात करते हैं, there's a question in the inbox. Okay, the inbox says कि ये भारत में भी चलन बहुत चल गया है. Exactly, कारण यही है कि आप जैसे एक छोटा सा, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी. कारण ये है कि एक छोटा सा आपका जो एड होता है, उसमें आप एक प्रोडक्ट को जब सेल कर रहे हैं, फेयर एंड लवली जैसा प्रोडक्ट, तो वो आप क्या सेल कर रहे हैं? आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, आप एक मानसिकता को भी बेच रहे हैं, जिसमें बोला जाता है कि गोरा रंग ज्यादा सुपीरियर है डस्की से ज्यादा, और एशियंस जितने होते हैं, जो एशियाई देश के लोग होते हैं, जो अफ्रीकी देश के लोग होते हैं, या तीसरी विश्व की जो दुनिया के लोग हैं, वो थोड़ा सा गेहुए रंग के होते हैं, जिनको हम डस्की बोलते हैं. तो यहाँ पर ये फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी एक प्रोडक्ट आप पर बिल्ड कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न सिस्टम्स. आप बहुत ज्यादा पाश्चात्य जगत से बहुत प्रभावित हुए हैं, तो इसके कारण वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के आए थे. तो इसके खिलाफ भी एक मोर्चा बांधा गया था और वहां पर ये मुद्दा उठाया गया था कि आप एक हीन भावना को बेच रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि आप एक हीन भावना, एक हीन मानसिकता को बेच रहे हैं. और इसी कारण से अब आप देखते हैं फेयर एंड लवली का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, ग्लो एंड लवली. ये छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. दैट फेमिनिज्म, जो अभी आप सबको लगेगा कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट बीइंग एंटी मेल, पुरुष विरोधी एक मानसिकता के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जा रहा है.
ये सिर्फ पुरुष विरोधी आंदोलन नहीं है। ये जो लिंग भेद पर आधारित, लिंग भेद का अर्थ है जो लिंग भेद पर आधारित आप भिन्नताएं या फिर जो मतभेद पूरे समाज में क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके विरोध में ये आवाज उठा रहा है। वैसे ये पुरुष और स्त्री का एक समान स्तर होना चाहिए समाज में, उस पर फोकस करता है। ये नहीं कहता आप, लेकिन कई जो फेमिनिज्म के जो स्ट्रैंड्स है, कई जो उसकी शाखाएं हैं, वो बहुत एक्सट्रीम में चले गए हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे रेडिकल फेमिनिज्म की बात करेंगे, उत्कट फेमिनिज्म की बात करेंगे, जो सीधे बात करता है कि पितृसत्तात्मक समाज का अंत कर दिया जाना चाहिए, all the roots of patriarchy should be ended. It speaks of emancipation. It speaks of liberation of women from the patriarchal dungeons. Okay, so ये चीजें बहुत डिफरेंट है। अब जो जिस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को जो पसंद आता है, वो उस तरीके से फेमिनिज्म को, जैसे आपका समाजवाद है या सोशलिज्म, एक इज्म का मतलब एक फिलॉसफी। सोशलिज्म की विभिन्न क्या है, आपकी शाखाएं हैं। आपने उसको सोशलिज्म को आपने कभी साइंटिफिक सोशलिज्म बोल दिया, कभी यूटोपियन सोशलिज्म बोल दिया, कभी आपने उसको आपने प्रावधान की नजर से देख लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप अपने अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ने भी नारीवाद को या महिलावाद को अपने अपने नजरिए से बनाने की कोशिश करी है। तो कुछ अतिवाद की ओर जाते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ जेंटल होते हैं, कुछ उदारवादी होते हैं, कुछ एक्सट्रीम होते हैं, और कई लोग आज की डेट में मानते हैं दैट फेमिनिज्म इज रिट्रीटिंग बिकॉज ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। कई लोग सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अब बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके समाज में पुरुषों के बराबर आ चुकी हैं। तो ये फेमिनिज्म नाम की जो चीज है या जो नारीवादी ये जो अवधारणा है, अब इसकी आवश्यकता नहीं रह चुकी है। So there are so many strands to it when you look into it, when you explore into it, when you go deep down into the roots of it, you will come to know there are so many issues which can be discussed. Okay? फिर इसी तरीके से इको फेमिनिज्म में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज देयर आर 60 ऑफ इट। इको फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म जिसको आप पर्या महिलावाद बोलते हैं, और जिसमें इनबॉक्स में एक पार्टिसिपेंट, एक प्रतिभागी की तरफ से उत्तर आया है। चिपको आंदोलन की जो जननी मानी जाती हैं गौरा देवी जी, सुंदरलाल बाहुगुणा जी को श्रेय तो जाता है, लेकिन जो अगर जननी बोला जाए तो वो गौरा देवी जी कहलाएंगी। फिर इसके साथ वंदना शिवाजी का भी बहुत काम रहा है, एम माइस जी का भी बहुत काम रहा है। तो इसमें क्या बोला जाता है, जिस प्रकार से प्रकृति हमारी माता है, ओके, प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरीके से जो स्त्री भी हमारा पालन पोषण करती है, तो उनका भी शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पालती है, हमें पोसती है, हमें एक हमारी परवरिश करती है। तो ये पर्या महिलावाद एक अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है। देन यू हैव इकोनॉमिक फेमिनिज्म, एनवायरमेंटल फेमिनिज्म, विमेन ऑफ कलर फेमिनिज्म, फोर्थ वर्ल्ड फेमिनिज्म, फ्रेंच फेमिनिज्म, गुरिल्ला फेमिनिज्म, हेट्रोसेक्सुअल फेमिनिज्म, ओके, आई फेमिनिज्म, इंडिविजुअल फेमिनिज्म, व्यक्तिवादी महिलावाद। ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बात करी जाती है ऑटोनॉमी की, पर्सनल ऑटोनॉमी की बात करी जाती है, या फिर कंसेंट की बात करी जाती है। उसकी हर महिला की, हर स्त्री की अपनी चॉइसेस होनी चाहिए। अभी आप देखते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड की हम बात करेंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो एक डिवाइड है, एक जो भेद किया जाता है कि जो सार्वजनिक दायरा है, जिसको आप पब्लिक स्पेस बोलते हैं, पब्लिक स्पेस पुरुषों के लिए बनाया गया है। पब्लिक स्पेस दैट इज द स्पेस वेयर यू अर्न, जहां पर आप कमाने लगते हैं, या फिर जो बहुत मैनली डोमेन्स है। मैनली डोमेन्स किसको माना जाता है, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे राजनीति है, वो किसको बोला जाएगा, एजुकेशन का जो सेक्टर है, या फिर जो कॉम्बैट के सेक्टर्स हैं, आर्मी या डिफेंसेस के जो आपके सेक्टर्स है, एसेंशियली क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है, ये एसेंशियली पब्लिक डोमेन्स है, विच आर एसेंशियली मेल डोमिनेटेड, पुरुषों के लिए ही बने हुए हैं। Then you have the other domain that is known as निजी क्षेत्र, या फिर जिसको आप बोलते हैं निजी क्षेत्र, या फिर प्राइवेट डोमेन। अब प्राइवेट डोमेन का हिस्सा क्या होता है, प्राइवेट डोमेन में बोला गया है कि ये जो डायकोटमी, ये जो विभेद का जन्म हुआ है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, पुरुषों के मामले में, आपके साथ मैं थोड़ा सा कोटेशंस साइट करूंगी जो कई आपके राजनीतिक चिंतक रहे हैं। प्लेटो ने तो समर्थन किया था कि महिलाओं को फिलोसोफर किंग का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनमें इतनी ज्यादा
योग्यताएं हैं कि वो एक दार्शनिक राजा की भूमिका निभा सकती है, एक दार्शनिक शासक की भूमिका में आ सकती हैं. तो ही इज बीन अ वेरी लिबरल थिंकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? बट हिज सक्सेसर एंड फॉलोइंग हिज सक्सेसर्स, आप देखेंगे धीरे धीरे जितने चिंतक आए उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी बातें रखी हैं जो कि कंप्लीटली महिला विरोधी हैं, और आपको लगेगा कि इनको री इंटरप्रेट करने की जरूरत है. ओके, सो जैसे हमने बात करी इंडिविजुअल फेमिनिज्म की, तो यहाँ पर चॉइसेस, आपके विकल्प होने चाहिए महिलाओं के पास. एक चॉइस में लिमिट नहीं होना चाहिए. उनके पास कंसेंट का राइट होना चाहिए. उनको हामी, अपनी हाँ या ना, अपनी राय देने का अधिकार होना चाहिए. अपनी पर्सनल ऑटोनॉमी का अधिकार होना चाहिए. सो इट स्पीक्स ऑफ these many concepts. Then you have intersectional feminism. Intersectional feminism का मतलब है महिलावाद. ये भी आजकल बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट चल रहा है. इंटरसेक्शनल कॉन्सेप्ट का मतलब है महिलाओं की जितने भी समस्याएं हैं वो कॉमन है. वो किससे कॉमन है? ना वो उसे रेस मान सकती है, ना नस्ल मान सकती है, ना धर्म मान सकता है. ठीक है, रेस या फिर आपका जो रिलीजन है, या फिर क्रीड है, या फिर आपकी जो स्थितियां हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, टेरिटोरियलिटी जो है, ये चीजें उसको बांध कर नहीं रख सकती है. महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो इन सारी चीजों से उठ करके हैं, इन सारी चीजों से परे हैं. और सबके जितने भी विश्व भर में जितने भी आपकी महिलाएं हैं, सबकी समस्याएं जो हैं वो इन दायरों से इन दायरों में नहीं बांधे जा सकते हैं. इनकी जो समस्याएं हैं कॉमन है. इसीलिए बाद में बात करी जाएगी, आपको साथ में बाद में डिस्कस करूंगी, यूनिवर्सल सिस्टरहुड की, या फिर सार्वभौमिक भगिनी समाज की बात करता है फेमिनिज्म. सार्वभौमिक भगिनी समाज का मतलब है जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं सेम है, उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो क्यों ना एक ही मंच पर आकर के वो सब अपनी बात रखें. ठीक है. देन यू हैव मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लेस्बियन फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, जिसकी हम बात करेंगे. मॉडरेट फेमिनिज्म, मुस्लिम होलिस्टिक फेमिनिज्म, नेक्स्ट जनरेशन फेमिनिज्म, पॉप फेमिनिज्म जो आजकल बहुत चल रहा है. ठीक है, इसमें बियॉन्से के बारे में आप लोगों ने पढ़ सकते हैं. ठीक है. पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, उत्तर उपनिवेशवाद के जो महिलावाद है. देन यू हैव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये भी एक आजकल आधुनिक, बिल्कुल वर्तमान में आधुनिक युग में जो आपके वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इस पर फोकस करा है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पर. ठीक है. और इसमें जेन फ्लेक्स ने तर्क प्रस्तुत किया था कि महिलावादी जो सिद्धांत है वो अनिवार्य रूप में उत्तर आधुनिक सिद्धांत है, क्योंकि यह लैंगिक संबंधों की प्राकृतिक, निश्चित तथा सार्वभौम जो मान्यताएं हैं उनको चुनौती देता है. ठीक है. तो इसको कई लोग जो है न्यू फेमिनिज्म के नाम से भी बोलते हैं, या फिर नव महिलावाद के नाम से भी जानते हैं. और इसमें कहा गया है, जैसे क्रिस वीडन है, वो कहती हैं कि इस आंदोलन के सूत्रों को सारी महिलाओं के लिए कोई एक या अंतिम रूप या अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता. हाँ, उन्हें सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का अभिकर्ता अवश्य माना जा सकता है. तो ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है ये अभी आधुनिक माना जा रहा है, सबसे स्ट्रैंड. देन यू हैव क्वेयर फेमिनिज्म, रेशियल फेमिनिज्म, रैडिकल फेमिनिज्म, सेक्स पॉजिटिव फेमिनिज्म, स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म. स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंतर्गत बोला जाता है कि अगर महिला मुद्दे हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए. कोई भी आप पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ भी आप डिवाइस कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी है, या कोई भी थ्योरी या सिद्धांत को लागू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खाका तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी है कि जो महिलाओं का जो नजरिया है, जो महिलाओं का जो सोचने का तरीका है, उसको अकाउंट में लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज की, कि इंडिया में आपकी स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए, राइट? अब आप जब स्मार्ट सिटीज डिवाइस कर रहे हैं तो उसमें, जैसे मेरा एक पेपर भी रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, उसमें बात मैंने रखी कि दे शुड बी जेंडर्ड स्मार्ट सिटीज. जेंडर्ड स्मार्ट सिटीज का मतलब है, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप नियोजन कर रहे हैं, किसी भी सिटी को प्लान कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें महिलाओं के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. ठीक है. तो स्मार्ट सिटी जो है, आप उसको मैकेनिकली या फिर एक यंत्र की जैसे नहीं तैयार कर सकते. उसमें महिलाओं के हितों को, महिला सुरक्षा को ध्यान में रख करके स्मार्ट सिटीज को बनाया जाना चाहिए. और इसके कई एग्जांपल्स हैं. जैसे अगर आप स्मार्ट की बात बोल रहे हैं तो वहां पर सुरक्षा के लिए हर जगह पर आपके प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, सेपरेट आपके वॉशरूम्स होने चाहिए. अगर आप, क्योंकि आप उनको स्मार्ट बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज का मतलब डिजिटली एडवांस बना रहे हैं. अगर आपके वॉशरूम्स हैं, सबके सब आपके इलेक्ट्रॉनिकली मोबिलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली
चल रहे हैं, तो कई बार हो सकता है कि आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाए, तो आप उस समय कैसे एड्रेस करेंगे? उसमें वो अगर महिला फंस गई तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? तो जब भी आप प्लान करें, किसी भी सिटी को भी डिवाइस करें, तो उसमें महिला हितों को, महिला सुरक्षा को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। सो स्टैंड बाय फेमिनिज्म में स्मार्ट सिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं बाद में कभी आपके साथ, अगर सर ने मुझे मौका दिया, तो शायद हम लोग दोबारा उस पर चर्चा कर पाएंगे। Then you have got theological feminism, third world feminism, trans-exclusionary radical feminism, and trans-feminism and womanist feminism, to name a few. Okay, so these are the various forms of feminism that we've discussed so far. Sir, module 1 अगर आप दिखा दें स्क्रीन पर, I'll be grateful. और यहां तक कि महिलाओं को मनुष्य का दर्जा भी नहीं देती हैं, बल्कि शोपेनहायर के अनुसार महिला एक बच्चे और एक पुरुष के बीच का एक मनुष्य, एक सजीव प्राणी माना जा सकता है। इन द लास्ट रिजॉर्ट वुमेन एग्जिस्ट सोनली फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द रेस। और फाइनली वो अपना जो मेल ऑन द कॉफन की बात करते हैं, वो कहते हैं महिलाओं का काम है केवल संतति की उत्पत्ति करना, दैट्स अबाउट इट, अपनी नस्ल को बनाए रखना, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ द ह्यूमन रेस, दैट इज सिर्फ पुरुषों को, सिर्फ आपकी संतानों को जन्म देने का काम, रादर एक आर्टिफिशियल मशीन की तुलना करी गई है। सिमिलरली हीगल ने भी बात रखी है, आप सबने पढ़ा है, हीगल एक जाने माने चिंतक हैं आपके, उन्होंने भी महिलाओं के संबंध में विचार रखा है, women are capable of education but they are not made for activities that demanded universal faculties such as the more advanced sciences, philosophies and certain forms of artistic production. Women are educated who knows how, as it were breathing in ideas by living rather than by acquiring language. अर्थात हीगल शब्दों में बोलते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको शिक्षा तो दे दी जानी चाहिए, किंतु उनके पास वो सार्वभौमिक योग्यता नहीं है जो कि विज्ञान में आवश्यक है, जो कि फिलॉसफी या फिर चिंतन में आवश्यक है, या फिर किसी भी उन्नत विज्ञान के लिए आवश्यक होती है। Women are educated who knows how. तो वो एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, आपने शिक्षित तो कर दिया है लेकिन किस लिए करा है आज तक का नहीं पता है। ओके, एंड फाइनली कॉम्टे, आप लोगों ने कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे का पॉजिटिविज्म के बारे में सुना होगा, निश्चयवाद जो समाज विज्ञान में निश्चयवाद के रूप से जाना जाता है, या फिर पॉजिटिविज्म जिसको बोलते हैं हम, ऑगस्ट कॉम्टे, he confines or rather sabotages the free will of the female by confining her into 4 roles without consent. मतलब ऑगस्ट कॉम्टे क्या कहते हैं कि महिलाओं को 4 भूमिकाओं में वो बांध देते हैं। कन्फाइंस का मतलब है, कन्फाइनिंग एक और वर्ड आप पकड़िए, कन्फाइन का मतलब वो बांध देते हैं, सिर्फ महिलाएं 4 भूमिकाओं में ही अपना काम कर सकती हैं। पहला, फर्स्ट एज अ मदर, एक माँ के रूप में, एंड सून एज अ सिस्टर, एक बहन के रूप में, देन अबव एज अ वाइफ, पत्नी के रूप में, एंड फाइनली एज अ डॉटर। ठीक है, मार्जिनली एज अ मेड सर्वेंट, घर की सहायक के रूप में। In these 4 natural roles, women is destined to preserve man from the corruption inherent in his practical and theoretical existence. It is in order to better develop a moral superiority that women must gratefully accept the rightful practical domination of man. That is, ये जो 4 भूमिकाएं हैं, माता का, बहन का, पत्नी का, बेटी का, और कहीं कहीं जो मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट का मतलब है जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है या फिर घरेलू जो सहायक है, इन भूमिकाओं में ही महिलाओं का रोल हो सकता है, उसके अलावा नहीं। और अगर महिलाओं को उन्नत जीवन जीना है या अगर महिलाओं ने एक सभ्य जीवन जीना है, तो वो केवल पुरुषों के आधिपत्य में रहकर ही जी सकती हैं, और उसको उन्होंने ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना है, या फिर उसे उन्होंने बहुत ही सलीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या अपना लेना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं का खुद का अस्तित्व नहीं है। एंड दैट इज वाई फेमिनिज्म को हम बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी का मतलब एक अस्तित्व क्या आंदोलन भी बोला जाता है, अस्तित्व की राजनीति भी बोला जाता है। क्योंकि अगर आप बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करिए, मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे सकती हूँ, बट इफ यू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट, इफ यू गो इनटू द रूट्स ऑफ इट, यू विल कम टू नो दैट देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट दैट यू नीड टू डिस्कस। अगर आप देखेंगे तो जो महिलाओं का जितना भी आप डिस्कशन करते हैं, वहां पर पुरुष का आधिपत्य, ये वर्ड बार बार यूज किया जाएगा। ठीक है,
So it believes that except for the anatomical or biological differences, there is no difference between men and women. तो यहाँ पर फेमिनिज्म किसकी बात करता है? महिलावाद, कि जो आपकी जीव प्राणी शास्त्र, जो आपका जीव वैज्ञानिक, जो आपका ढांचा बना है, बायोलॉजिकल या एनाटॉमिकल जो डिफरेंसेस है, उसके अलावा पुरुष और स्त्री में कोई भिन्नताएं नहीं है, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आप उनका राजनीतिक प्रदर्शन देख लीजिए, सामाजिक रोल देख लीजिए, आर्थिक प्रदर्शन देख लीजिए, हर मामले में, हर क्षेत्र में महिला और पुरुष बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी ने एक कॉन्स्ट्रक्ट तैयार करा है, एक अवधारणा को जन्म दिया है जिसको आप जेंडर बोलते हैं। और यही जो जेंडर वर्ड है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक है यौन और एक है लिंग, दैट इज सेक्स वर्सेस जो जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, इसने महिलाओं को दोयम दर्जे का बना दिया है। ठीक है? So it believes that men and women are equal and therefore must have equal rights and opportunities. The earliest work on the subject was written by Christine de Pizan, called Book of the City of Ladies. Since then, there have been an upsurge in this field, and women polemists in the West have called it the era of waves. Now, let me put it like this: अगर ये महिला आंदोलन की हम बात करें, तो ये 1405 में एक लेडी थी, क्रिस्टीन डी पिसा, उन्होंने किताब लिखी थी सिटी ऑफ लेडीज। तो वहां पर जितनी भी आपकी हाई एलीट संभ्रांत परिवारों से जो महिलाएं संबंध रखती थी, उन्होंने उनके इंसिडेंट्स को, उनके लाइफ, उनके अधिकारों को, उनकी शिक्षा के बारे में उसमें चर्चा करी गई है। ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे कि जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, अगर इसको जननी बोला जाए, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, उनकी किताब का नाम है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, अगर आपने फेमिनिज्म को पढ़ना है तो वहां पर से शुरुआत होती है नारीवाद या महिलावाद, जो आपके एक आंदोलन का रूप, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के तरीके से रूप लेने लगता है या फिर शेप लेने लगता है। और ग्रेजुअली आप देखेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वाले उसमें डिस्कस करेंगे, वहां पर एरा ऑफ वेव्स की बात होने लग जाती है। चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को उनके अधिकार दिए गए हैं, चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को उनका अधिकार के साथ साथ स्वतंत्रताएं मिली हैं, और आज तक का जो आप लोग अभी हार्मफुल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस देखेंगे, जो उनके विरोध में, जो उनका शोषणकारी जो घटनाएं घट रही हैं, आज भी एक आंदोलन की आवश्यकता है। तो आप पढ़िएगा, इसमें बोलते हैं न्यू सोशल मूवमेंट्स या फिर नवीन सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट्स जो है, न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंतर्गत हम उन वर्गों का अध्ययन करते हैं या उन आंदोलनों को शामिल करते हैं जो कि आपके समाज में हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे संबंध रखते हैं। जैसे दलित मूवमेंट ले लीजिए, या फिर एनवायरमेंट मूवमेंट ले लीजिए, या महिला संबंधी जो मूवमेंट है वो ले लीजिए। ठीक है? तो जितने भी आपके मार्जिनलाइज्ड या नेग्लेक्टेड या पेरिफेरलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, the way they are protesting for their rights, the way they are fighting for their identities, the way they are asserting themselves, they come under the umbrella term of new social movements. ठीक है? तो ये बात रही है आपकी फेमिनिज्म की। तो हमने सबसे पहले पुस्तक की बात कर ली। अब देखिए, दिस इज नॉट फेमिनिज्म। जो आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, एक प्लस का साइन है और एक एरो ऊपर जा रहा है कि पुरुष महिला से बड़ा है। ये आपके बायोलॉजिकल साइंस होते हैं। अगर आप लोगों में से कई लोगों की प्राणी शास्त्र या बायोलॉजी रही होगी तो उसमें आपको मिलेगा ये टर्म। तो इसमें दिखाया गया जो ये साइन है, पिंक वाला जो साइन है, वो ब्लू साइन से बड़ा है। पिंक जो है आपका मेल है, एंड जो ब्लू है वो फीमेल को सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक चिन्ह है। तो दिस इज नॉट फेमिनिज्म। ठीक है? फेमिनिज्म क्या है आपका? जहां पर दोनों को इक्वल, समानांतर में रखा जाता है। नाउ सेकंड है, feminists have challenged the idea, very important, biology is destiny, by drawing a sharp distinction between sex and gender. अब ये जो वर्ड है biology is destiny, प्राणी शास्त्र ही भाग्य है, ये वर्ड को चैलेंज किया था एक बहुत पावरफुल थिंकर रही है, सिमोन दी बोवार। इन्होंने द सेकंड सेक्स करके एक किताब लिखी थी, और इनके किताब का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वन इज नॉट बोर्न अ वुमन, वन बिकम्स वन। एक किसी भी प्राणी का जन्म एक महिला के जैसे नहीं होता है, उसको समाज महिला या स्त्री बना देता है। जन्म तो एक मनुष्य के जैसे होता है, लेकिन जो ये दर्जा, ये जो आपको एक टैग दिया जाता है वुमन का, वो समाज देता है। द रीजन बीइंग दिस, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बायोलॉजी है, जो आपका शारीरिक संरचना है, उसी को आधार बना दिया जाता है कि आप समाज में दोयम दर्जे के हैं। और इसी चीज को, बायोलॉजी इज डेस्टिनी को चैलेंज किया गया है सिमोन दी बोवा ने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में। क्लियर है? तो यहाँ पर सेक्स एंड जेंडर जो हमने बात करी, यौन और लिंग,
अब इसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। सेक्स कैटेगराइज्ड एज मेल और फीमेल। जेंडर जो है ये पुरुषत्व और महिला स्त्रीत्व की बात करता है, ठीक है। जो आपका जो पहला सेक्शन है वो तो आपका शारीरिक संरचना है जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन जो जेंडर है ये चीज समाज द्वारा एक थोपी हुई चीज है जिसके कारण से आज भी फ्रिक्शन होता है पुरुष और स्त्रियों के बीच में। दूसरा बायोलॉजिकल है, प्राकृतिक है। जेंडर जो है सोशली, कल्चरली एंड हिस्टोरिकली डिटरमिन्ड है। ये जैसे मैं बार बार बोल रही सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तौर से ये निश्चित किया गया है और थोपा गया है, ठीक है। तीसरा है फिक्स्ड एट बर्थ, ये जन्म से ही निश्चित है। लेकिन जेंडर में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। आपकी कंडीशनिंग होती है, आपका परिवार में रह करके अनुबंधन होता है। अनुबंधन का मतलब एक अनुबंधन की प्रक्रिया चलती है। जैसे ही आपने देखा होगा न्यूबॉर्न्स होते हैं, बॉयज को ब्लू पहनाया जाता है, गर्ल्स को पिंक पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लू सिंबलाइजेस थोड़ा मैनलीनेस बताता है, पिंक बताता है माइंडलेस। माइंडलेस का मतलब कि उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। फिर ग्रेजुअली बच्चा बड़ा होता है, बॉयज आर गिवन टॉय ट्रक्स। उन्हें अगर आप उनके जो टॉयज भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं, आप देखेंगे उनको ट्रक्स दिए जाएंगे, गन्स दी जाएंगी, इस तरीके की चीजें रहेंगी। लड़कियों को बार्बी डॉल्स दी जाएंगी या फिर छोटा जो आपका हाउसेस होते हैं, बेबी हाउसेस होते हैं, इस तरीके की चीजें दी जाएंगी। सो दे आर पैम्पर्ड दैट वे। लड़कियों का अनुबंधन की प्रक्रिया अलग तरीके से की जाती है। लड़कों से कहा जाता है आप रो मत, दो दैट इज ए ह्यूमन सेंटिमेंट। आंसू का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती, उसका कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन वहां पर भी सोशलाइज इस तरीके से किया जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। हाँ, किचन सेट्स, एग्जैक्टली नूरीन, किचन सेट्स आर गिवन टू गर्ल्स, वेरी सैड। लेकिन अभी अब टाइम चेंज हो रहा है, वी कम टू अ स्टेज वेयर वी बिलीव इन को शेयरिंग ऑफ वर्क। तो फेमिनिज्म ने एक और चीज बदली है, जैसे नूरीन ने लिखा है कि किचन सेट्स लड़कियों को ही दिया जाता है, लेकिन अब टाइम बदल गए हैं। अब लड़का लड़की दोनों जो है हाउस होल्ड में मिलजुल करके काम करते हैं, जिसको बोलते हैं को शेयरिंग ऑफ वर्क। घरेलू कार्यों का समान रूप से मिलजुल करके काम करते हैं। एंड द फैक्ट इज कि उनके जो माता पिता हैं वो भी इसी तरीके से अपने बेटों का ग्रूमिंग कर रहे हैं कि आपने हाथ बटाना चाहिए, भी तो आपके लाइफ पार्टनर है जो भी हैं, आपने उनके साथ हाथ बटाना चाहिए। सो टाइम्स आर चेंजिंग। अगर ये आंदोलन नहीं होता, हो सकता था कि अभी भी जो मेल शोविनिज्म की बात करते हैं, मिसाजनी की बात करते हैं, तो ऐसी चीजें अभी तक का चलती। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, जैसे इन लोगों ने काम किया है, जितने भी चिंतक हैं, जितने भी आपके आंदोलन करता है, जिन्होंने अपना समय दिया है, उनके कारण आज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बदलाव जरूर आया है। देन इट डजंट चेंज अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ऑब्वियस सी बात है, बट इट चेंजेस, वेरीज ओवर टाइम एंड स्पेस। आप अपना जेंडर रोल्स चेंज कर सकते हैं। जेंडर रोल्स कैसे चेंज हो रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा आर्मी में अब गर्ल्स को भी कमीशन किया जा रहा है, उनको भी ऑफिसर्स अपॉइंट किया जा रहा है। कई प्लेसेस हैं जहां पर गर्ल्स को प्रेफरेंसेस ज्यादा दी जा रही है, ठीक है, उनको नेक टू नेक उनको compete करने का मौका दिया जा रहा है। इक्वली वैल्यूड एंड अनइक्वली वैल्यूड, मैस्कुलिनिटी एज द नॉर्म। जेंडर के अंतर्गत क्या आता है कि यहाँ पर हम लोग जो आपकी शारीरिक संरचना है वो तो मान लेते हैं, लेकिन जहां पर जेंडर, लिंग वाली बात आ जाती है, वहां पर अनइक्वली वैल्यू, मतलब वहां पर पुरुष या पितृ सत्ता ज्यादा हावी होगी स्त्री के ऊपर, या फिर स्त्रियों को, महिलाओं को आधिपत्य में रहना पड़ेगा पुरुषों के। So while biological differences are natural and unalterable, gender on the other hand is a socio-cultural construct that is imposed. In other words, gender decides what roles do men and women have in the society. जो मैंने आपसे बात करी थी पब्लिक प्राइवेट डायकोटमी की बात करी थी, या फिर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में जो विभेद होते हैं, भिन्नताएं की बात होती है, वो जेंडर डिसाइड करता है। कि जेंडर डिसाइड करता है कि पुरुष किस काम के लिए बना है, महिला किस काम के लिए बनी है। फॉर इंस्टेंस अगर आप उत्तराखंड का केस ही लें तो आज भी यहाँ पर डायकोटमी रहेगी कि फार्मर जो है, किसान जो है, महिला को किसान नहीं कहा जाएगा, लेकिन अब ग्रेजुअली एक्सेप्ट करा जा रहा है कि महिला भी एक, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं, सॉरी आई जस्ट मिस्ड आउट दैट नेम, इसको आप ऐसी इकोनॉमी बोलते हैं जो महिलाओं के कंधे पर है। तो सारा काम, अगर उनके जो बेटर हाव्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, सारा काम, सारा खेत, जितना भी किसान, जो किसान का काम है, वो सारा का सारा महिलाएं कर रही हैं, तो उनको फार्मर का दर्जा क्यों नहीं देंगे आप?
तो ये जो फार्मर वर्ड भी था, इस पर भी आपका कंट्रोवर्सी रही है और कहा गया है कि महिलाएं सबसे ज्यादा अपना योगदान देती हैं कृषि में, तो उन्हें भी फार्मर कहा जाना चाहिए। सिमिलरली आज आप बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं, अगर जीडीपी को देखें सबसे ज्यादा 24/7 365 डेज 24/7 डेज देखें, महिला जो घरेलू महिलाएं हैं सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट उनको इनविजिबल माना जाता है, उनको नगण्य माना जाता है। अगर आप उनके कंट्रीब्यूशन को, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को अगर काउंट करेंगे जीडीपी में, तो आपका जीडीपी कितना हाई हो सकता है। आप एक वर्ग को बिल्कुल वंचित कर दे रहे हैं, ना आप उसको पेमेंट करते हैं, ना आप उसको उसके योगदान को इकोनॉमिक वैल्यू देते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आप अपनी कंट्री का कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा डिसाइडिंग फैक्टर जो है, जो ये डिस्क्रिपेंसी, जो वर्ड मैं बोल रही हूँ बार बार, डिस्क्रिपेंसी का कारण है, भिन्नताओं का कारण है जेंडर। Now, because of this, men are projected as strong, intelligent, and dominating, while women are treated as weak, incapable, and subordinated. Okay? तो इसी कारण से, जेंडर वर्ड की वर्ड से या लिंग भेद की वजह से ये डाइकोटमी, ये भिन्नताएं समाज में आज तक का दबी हुई है। अब आता है बैरियर्स टू जेंडर इक्वालिटी। जब हम बोलते हैं कि लिंग समानता या लैंगिक समानता क्यों नहीं हम अचीव कर पा रहे, तो इसके लिए कुछ कारण हैं जो आप लोग सुनते हुए आए हैं। आई वुड नॉट रीइटरेट इट, बट आई वुड जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इट। जैसे पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज जहां पर पुरुषों का आधिपत्य होता है। देन यू हैव द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, जो मैंने आपको बताया, सार्वजनिक क्षेत्र जहां पर पुरुष ब्रेड विनर है, जहां पर पुरुष सारा का सारा काम करता है क्योंकि वो अर्न कर रहा है, और प्राइवेट डिवाइड जो चार दीवारी है घर की, उसमें महिलाओं का योगदान है। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है। देन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, जहां पर महिलाओं का वस्तुकरण किया जा रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए आप, एक मेल का रेजर एड देखिए, तो रेजर ब्लेड है, ठीक है, और आप उस रेजर ब्लेड में आप एक महिला को क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी मैगजीन है, तो आप उसके मैगजीन के कवर में महिला को क्यों यूज कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर लाइक थिंग्स विच नीड टू बी पॉन्डर्ड अपॉन। ठीक है, आप उसको कमर्शलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से उनकी एग्जिस्टेंस को आप निगेट कर रहे हैं। सो इसमें यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, sorry, post office economy, no, yeah, you are very close to it, Kalpana. There's a word for it, I just missed out. It's not post office economy, but very close to it. Okay, thank you. So यहाँ पर जो objectification है, तो यहाँ पर ये जो word है, अगर हम देखें, कई चीजें आपकी इसके साथ add on होती है। For example, you have many terminologies connected to feminism जो gender imbalances से connected है, जैसे alterity। Alterity का मतलब है condition in which the people on the fringes are denied access by virtue of race, caste, gender or religion। दूसरा है otherness, by placing the person outside or in opposition to the norm, best typified by Simone de Beauvoir in the second sex। तो एक और कॉन्सेप्ट है आपका अदरनेस, इस लिस्ट में नहीं है। अदरनेस एक और कॉन्सेप्ट है जहां पर महिलाओं को 2M दर्जा दिया जाता है, अदर का दर्जा दिया जाता है। तीसरा है माइकल फूको का कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियोरिटी एंड न्यूयॉर्क वुमेन्स अगेंस्ट पोर्नोग्राफी ग्रुप्स डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस whereby a powerful group establishes and maintains dominance over a less powerful group by teaching that the subordinate group is less than human or like an object। तो यहाँ पर फिर से आधिपत्य किसका आ जाता है? जो ऑब्जेक्ट बना रहा है महिला को, ठीक है, उस महिला को बना रहा है, तो वहां पर वो अपनी पावर दिखा रहा है, अपना शक्ति दिखा रहा है, अपना वर्चस्व दिखा रहा है, और दूसरे व्यक्ति को, दैट इज महिला को या स्त्री को, क्या दिखा रहा है? एक ऑब्जेक्ट के जैसे दिखा रहा है, या फिर उसको एक वस्तु के जैसे उसका वस्तुकरण कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन भी एक बहुत बड़ा इशू है दैट नीड्स टू बी टैकल्ड, राइट। देन यू हैव डबल स्टैंडर्ड्स, एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है डबल स्टैंडर्ड्स। ये हम लोग, जो आपने सुना ही होगा, दोहरापन। तो यहाँ पर दोहरापन का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर जो डबल स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक मानदंड या एक मापदंड आप पुरुषों के लिए रखते हैं और एक मापदंड आप महिलाओं के लिए रखते हैं। तो ये भी कारण है कि आपकी जेंडर इक्वालिटी अभी तक का अचीव नहीं हो पाई है, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए जरूरी है कि आप एक ही मापदंड बनाएं दोनों वर्गों के लिए, और उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के उनको अवसर, समान अवसर प्रदान करिए, समान स्वतंत्रता प्रदान करिए, समान लिबर्टी प्रोवाइड करिए। यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें पब्लिक प्राइवेट डिवाइड में, जीन बी एल्स्टान्स की एक इंपॉर्टेंट बुक है, पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमन 1981 की। तो यहाँ पर आप उसके ऊपर डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुरुषों को पॉलिटिक्स, वर्क
आर्ट, लिटरेचर, साहित्य के साथ जोड़ा जाता है, और महिलाओं को जोड़ा जाता है प्राइवेट एग्जिस्टेंस के साथ. एंड दे आर सेंटर्ड अपॉन फैमिली एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो आपके पारिवारिक संबंध है बस वहीं तक का, घरेलू मामले तक ही उनको सीमित कर दिया जाता है. तो ये आप जीन बी एस्टाउंस की एक बुक है, पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमन, जो आपको क्लैरिटी दे सकता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में. देन अनदर वन इज जेंडर स्टेरियोटाइपिंग. जेंडर स्टेरियोटाइपिंग जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो काम है या फिर जो आपके कार्य है उनको किस तरीके से स्टेरियोटाइप कर दिया है. ये काम पुरुषों के लिए बना गया है, ये काम महिलाओं के लिए बना गया है. देन यू हैव डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसेस. आप डे इन एंड डे आउट देखते हैं हर वर्ग में जहां पर आपकी भेदभाव किए जा रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर certain issues which need to be addressed and which are being addressed by feminists. Okay. Now status of women across the world. तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइडेड हैं. Women rights are human rights. तो यहाँ पर फेमिनिस्ट का एक और काम चल रहा है कि वो महिला अधिकारों को मानव अधिकार में परिवर्तित करने का पूरी तरीके से जोर लगा रही है. देन यू हैव गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड. प्लान इंटरनेशनल एक बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जेंडर इक्वालिटी नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू वेरी गुड स्टफ, वेरी गुड ऑथेंटिक एम्पेरिकल स्टफ. अगर आपने पढ़ना है, स्टेटस ऑफ वुमेन सिर्फ भारत तक ही सीमित मत रहिए, पूरे देश भर में आप देख सकते हैं, पूरे विश्व भर में देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है. एंड लेट गर्ल्स लर्न. दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग बाइट विच यू कैन टेक. Now, you have another, how are gender roles built through socialization? तो यहाँ पर आपको फिर से मैंने प्रोवाइड करी है लिस्ट ऑफ वीडियोस फ्रॉम बर्थ. बार्बी डॉल्स फॉर गर्ल्स एंड ट्रक टॉयज फॉर बॉयज. लड़कियों के लिए गुड़िया, लड़कों के लिए ट्रक टॉयज. स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गर्ल्स आर गुड एट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सॉफ्ट सब्जेक्ट्स. बॉयज डू वेल इन मैथ्स एंड साइंस. तो ये स्टेम का जो कॉन्सेप्ट है, STEM, स्टेम का जो कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा देखते हैं कि गर्ल्स ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं आपके साइंसेस में, क्योंकि उनको ग्रूम करा जाता है इस तरीके से. तो गर्ल्स आर गुड एट आर्ट्स, सॉफ्ट सब्जेक्ट्स हम बोल रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए अच्छी बनी है, या फिर जो कला के विषय हैं वहां पर बेहतर कर सकती हैं. बट बॉयज को क्या ग्रूम किया जाता है कि आप आए ना आए, ठीक है, यू आर गुड एट इट और यू आर नॉट. ठीक है, आपको मैथ्स आती है, साइंस आती है या नहीं आती, लेकिन आपको जाना उसी फील्ड में है. सो दिस इज अगेन वेरी, आई वुड से ठीक है, एक तरीके से मानसिकता बिल्ड करी जा रही है, ग्रूमिंग कंडीशनिंग ही कारण होती है. Then through institutions and society, women are meant for household chores and men are meant for politics, art and literature. Again, a very thought-provoking thing कि महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिए और पुरुषों को politics, art and literature. Through language, through literature and through media. ये तीन ऐसी powerful mediums हैं, ऐसे powerful संसाधन हैं जो आपका बार बार इन्फोर्स करते हैं, आपके दिमाग में ये बात बैठा देते हैं कि पुरुष ने ऐसा करना चाहिए, लड़के ने ऐसा करना चाहिए, लड़की ने ऐसा करना चाहिए. भाषा, साहित्य और मीडिया, ये तीन बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से. देन फाइनली यू हैव ट्रेडिशनल जेंडर. ये देखिए, आप जो हम जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की बात कर रहे हैं, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग में गर्ल्स को पिंक से हाईलाइट करा है, गर्ल्स बॉयज को ब्लू से हाईलाइट करा गया है. स्टेरियोटाइप्स में क्या बताते हैं? गर्ल शुड नॉट बी एग्रेसिव, उन्होंने गुस्सा नहीं करना चाहिए, डिपेंडेंट होनी चाहिए, निर्भर होनी चाहिए, आत्मनिर्भर नहीं होनी चाहिए, निर्भर होनी चाहिए. देन इजीली इन्फ्लुएंस, सबमिसिव, पैसिव, होम ओरिएंटेड, इजीली हर्ट इमोशनली, बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, इनडिसाइसिव होती हैं, निर्णय लेने की उनमें शक्ति नहीं होती. तो आज तक का आप देख सकते हैं, पंचायती राज हो चाहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन की बात है, 33% से अधिक वो मांग ही नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी भी यही फील किया जाता है, दे आर नॉट गुड एट पॉलिटिक्स. अभी भी यही माना जाता है कि राजनीति जो है वो उनका क्षेत्र नहीं हो सकता. लेकिन कई विचारकों का मानना है, अगर आपने राजनीति का सभ्यीकरण करना है, इफ यू वांट टू सिविलाइज पॉलिटिक्स, देन यू नीड टू हैव वुमेन इनटू इट. तो ये दो चीजें चलती हैं. और इमोशनल, वर्बल, काइंड, टैक्टफुल एंड नर्चरिंग, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, जितने भी माइल्ड एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी आपके माइल्ड एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे आप महिलाओं को अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं. और बॉयज को चाहे वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, आपने अग्रेसिव होना है, आपने गुस्सा दिखाना है, आपने इंडिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, डोमिनेट करना है, अपना आधिपत्य दिखाना है, अपना वर्चस्व दिखाना है. ठीक है, आप इजिली इमोशनली वीक नहीं हो सकते, आंसू नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी गर्ली ट्रेट. गर्ली ट्रेट का मतलब है कि बहुत ही आप एक लड़की, मतलब एक आप इमोशनली इतना वीक नहीं हो सकते हैं. सो ऑल दीज आर ट्रेट्स which you can very well find out in the PPT. Now, module 1 में मैंने आपको एक वर्कशीट दी है
ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट्स ऑल बी ईच फॉर इक्वल, ये इक्वल टू का साइन बनाया है. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग बाइट्स. एन इक्वल वर्ल्ड इज एन इनेबल्ड वर्ल्ड. अगेन अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग कोटेशन हियर दैट एन इक्वल वर्ल्ड, अगर एक समान विश्व की बात करते हैं, देन इट इज एन इनेबल्ड वर्ल्ड. तभी आप उसको वास्तविक रूप से एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड बोल सकते हैं. सो डाउनलोड MS पावर पॉइंट आप करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और या गूगल स्लाइड्स एक अच्छा है, आप कैनवा भी यूज कर सकते हैं. उनमें आप 5 एनिमेटेड स्लाइड्स बनाइए जिसमें आप टेक्स्ट, पिक्चर्स और एनिमेशन करिए, और मेक योर प्रेजेंटेशन ऑन एनी वन टॉपिक. योर व्यू अबाउट फेमिनिज्म, मतलब आपके क्या विचार है फेमिनिज्म पर. व्हाट फेमिनिज्म मीन्स टू यू, एक और चॉइस है आपके लिए, क्या है फेमिनिज्म. तीसरा है बैरियर्स टू जेंडर इक्वालिटी, क्या क्या बाध्यताएं हैं या फिर लिमिटेशंस है जेंडर समान लैंगिकता लाने के. जेंडर सोशलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, लैंगिक अनुबंधन से क्या समझते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग से आप क्या समझते हैं. और फाइनली, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है आज की वर्कशॉप के लिए, ये मेरा ऑलरेडी प्रोवाइडेड मटेरियल है, सो आप सर को प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट ही पुट्स इट इन द रिपोर्ट, क्योंकि ये आपके लिए एक एक्टिविटी चार्ट होता है हर वर्कशॉप में. सो मेरी ओर से ये एक वर्कशीट 1 है आपके लिए. और for those of you who are pretty interested in reading and skimming through the material, so I would say that ये कुछ interesting books हैं. एक है A Vindication of the Rights of Women, जो मैंने बोला, Mary Wollstonecraft. अब इसके नीचे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट गटनबर्ग, क्योंकि आप सब के सब रिसर्च को बिलोंग करते हैं, अधिकतर आप लोग शोधार्थी हैं. सर could you please scroll it down? I've come to the end of this PPT, sir. Yeah. So Vindication of the Rights of Women, जो मैंने बोली है, मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट की है, एक इम्पोर्टेंट किताब. और आप प्रोजेक्ट गटनबर्ग, आप साइट पे जाएगा. इफ यू वांट टू एक्सेस क्लासिक बुक्स का मतलब है जो बेस बुक्स होते हैं जिनसे आपका पूरा का पूरा संकल्पना या अवधारणा समझ में आती है. सो दिस इज अ फ्री एक्सेस साइट, फ्री साइट है प्रोजेक्ट गटनबर्ग. इट हैज ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, वंडरफुल कलेक्शन ऑफ बुक्स. आप वहां जा सकते हैं, यू कैन वेरी वेल एक्सेस इट. दूसरा है Women in the 19th Century by Margaret Fuller and Arthur B. Fuller. प्रोजेक्ट गटनबर्ग से मतलब आप डाउनलोड कर लीजिएगा. I just posted the front covers of it for convenience. Then you have Women as World Builders. That is Floyd Dell. Again, प्रोजेक्ट गटनबर्ग से एक्सेस करी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कंटेंट और ज्यादा अच्छा पढ़ना है, I would suggest एक किताब है Feminism is for Everybody, irrespective of the fact that you are a guy or a girl. आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप एक शोधार्थी के नजर से अगर देखेंगे, रिसर्चर की भूमिका में देखेंगे, तो फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बाय बेल हुक्स. डेवलप कर सकते हैं. ओके, सो नाउ कैन वी सर मूव टू द स्लाइड, सेकंड स्लाइड ऑफ इट. ओके, नाउ कमिंग टू स्लाइड 2. अब आप स्लाइड 2 में देखेंगे मॉड्यूल 2, एक्सप्लोरिंग द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. अभी तक का मैंने आपको भूमिका बता दी है कि फेमिनिज्म क्या है. उसमें क्रिस्टीन किताबों से शुरू हुई है, साहित्य की रचना करी गई है, आप पढ़े हैं, आप कईयों ने शौकिया तरीके से पढ़ी होगी. नाउ वी विल कम बैक टू द फैक्ट, यू हैव वेरियस वेव्स टू इट. वेव्स का मतलब है लहरें, लहरें को नाम दिया गया है. अब यहाँ पर सैड पार्ट ये है कि हम हमेशा वेस्टर्न चश्मे से देखते हैं, पाश्चात्य चश्मे से देखते हैं. भारतीय जो आपका सिनारियो है, हम उसको उतना तरीके से फॉलो नहीं करते हैं. आप वैदिक, पोस्ट वैदिक इस तरीके से फॉलो करते हैं. लेकिन जो वेव वाला कल्चर की बात करें तो ये आपका पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है, जहां पर यूएसए और ब्रिटेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. राइट, सो जर्नी ऑफ वुमेन्स ये है, आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं. ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ फेमिनिज्म, अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स राइट, UN Women. ठीक है, ये आपकी YouTube वीडियोस है जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं. अब इसको अगर आप सर नीचे आ जाएंगे, एक स्लाइड नीचे. ओके, अब यहाँ पर को आप देख सकते हैं एक साइंटिफिक तरीके से, जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल अपने स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैज हैपेंड हियर आल्सो. इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा एक पीरियोडिक टेबल बनाया है व्हिच प्रोवाइड्स यू द लिस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट्स, द पीरियोडिक टेबल ऑफ फेमिनिज्म. मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस सीरीज से, 1 से लेकर आप 53 तक का देखेंगे. सो फेमिनिज्म, जितने भी फेमिनिस्ट हैं या महिलावादी हैं या नारीवादी जो चिंतक रहे हैं, उनका सीरीज में नाम दिया है, जैसे आपने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल फॉलो करा होगा. सो फर्स्ट यू हैव मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट, फॉलोड बाय एमलीन पैंखर्स्ट, देन यू हैव एमिली वर्ल्डिंग डेविसन, सिमोन डी बोवर, फिर उसके बाद बेटी फ्रीडमैन है, नाओमी वुल्फ, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है. अगर आप ब्लैक की बात करते हैं तो नाओमी वुल्फ को आप एक स्टीरियोटाइप ब्रेकर बोल सकते हैं. ठीक है, फिर
और भी आप, there is some blurriness out here, ठीक है. And finally you have Barbara Smith, Judith Butler is there, Andrea Dworkin is there, ठीक है. तो ये एक बहुत, Clara Zetkin is there, तो बहुत से अच्छे अच्छे आप लिस्ट ऑफ फेमिनिस्ट देख रहे हैं. एंड सैडली अगर आप भारत के उसमें देखें, अभी रिसेंटली कमला भसीन जी, एक वेरी वेल नोन फेमिनिस्ट, वी लॉस्ट हर. और शायद आज का फेमिनिस्ट का लेक्चर अगर मेरी ओर से रहेगा तो उनको ही समर्पित रहेगा कि किस तरीके से शी इज बीन अ वंडरफुल फेमिनिस्ट, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर सिर्फ काम ही नहीं करा है, कई मोटिवेट करा है महिलाओं को, और अपने जितना भी जीवन रहा है, आप उनके टेडेक्स टॉक्स कीजिए. आई थिंक महिला को समझने के लिए सिर्फ आप पढ़िए मत, उनके जो बातें होती हैं आप उनको एनालाइज करिए, उनको विश्लेषित करिए, एंड देन यू विल गेट टू द क्रक्स ऑफ इट. ओके, सो कमला भसीन जी बहुत बढ़िया रही हैं. वंदना शिवा जी अगर भारत में कहें, वो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. ठीक है, नाउ कमिंग हियर, फिर से आ जाता है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमलाइंस मैंने आपको प्रोवाइड करी है. फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है. ठीक है, तो फर्स्ट वेव का टाइमलाइन आप देख रहे हैं कि 40 से 60 तक का है, और इसमें इसको उदारवादी, इसका फीचर था इस वेव में आप बोलते हैं उदारवादी फेमिनिज्म की बात करते हैं, लिबरल फेमिनिज्म की बात करते हैं. तो यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फोकस किया गया है सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और लीगल राइट्स, इक्वालिटी होनी चाहिए महिलाओं के लिए. ठीक है, साथ में आप ये ट्रांस की थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. अमेरिका में भी एक पैरेलली चल रहा था मूवमेंट, उसको लीड कर रही थी केडी स्टेंटन, एलिजाबेथ केडी स्टेंटन, वो लीड कर रही थी. और वहां पर सेनेका फॉल्स कन्वेंशन होता है, एक एंटी स्लेवरी मूवमेंट तो चल ही रहा था, दास प्रथा के विरोध में एक आंदोलन चल ही रहा था. लेकिन अमेरिका में उसी से प्रभावित होकर के केडी स्टेटन ने, वहां पर सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ, तो वहां पर एक आंदोलन चलाया जिसको आप सफ्रेगेट मूवमेंट भी बोलते हैं. सफ्रेगेट मूवमेंट का मतलब है मताधिकार के लिए एक मूवमेंट चलाया गया. अब सोचिए, कई तरीके से तो हम पाश्चात्य जगत से कई मामलों में आगे हैं. जब भारत आजाद हुआ था, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको समान रूप से मताधिकार मिला है, वोटिंग राइट्स मिले हैं. लेकिन पाश्चात्य जगत में अगर आप देखेंगे, वहां पर उसके लिए आंदोलन करना पड़ा है. न्यूजीलैंड को 1893 में आपका वोटिंग राइट मिला था, अमेरिका को बाद में मिला था 1928 में, इफ आई एम नॉट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इसी तरीके से ब्रिटेन में भी आपका जब आपका एक आंदोलन छेड़ा गया, वहां पर हैरियट टेलर ने उसको लीड करा था. तो हैरियट टेलर ने जब लीड करा, तब जाकर के आपका एक, जब वोटिंग सफ्रेगेट मूवमेंट चलाया गया, तब जाकर के महिलाओं को अधिकार दिया गया. और वहां पर ऐसा नहीं है कि आपका लेजिस्लेशन पारित हो गया या फिर आपके कानून बन गया है तो हाथों हाथ आपको मताधिकार, एक दशक के बाद वहां पर आपको मताधिकार दिया जाता है. So you could see that at times we try to run down our own country. कई बार लगता है कि हमारे देश में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ऐतिहासिक तरीके से अगर स्टडी करते जाएंगे, तो in many matters our country is very well advanced when compared to its western counterparts, right? जैसे अमेरिका को अगर हम देखें, आज तक का उनकी हिस्ट्री में अभी तक का अमेरिकन प्रेसिडेंट फीमेल नहीं रही है, बट इंडिया हैज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड अ फीमेल प्रेसिडेंट इन द गार्ब ऑफ मिसेस प्रतिभा पाटिल, राइट? आपने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो वाई कर रही थी, उनके साथ फाइट कर रही थी, उनके ऑपोजिट, आई जस्ट मिस्ड आउट हर नेम, मिसेस लिंकन. ठीक है, सो तब वहां पर महिला को ही समर्थन नहीं दिया, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो लाउडनेस थी या फिर जो जिस तरीके से वो महिलाओं के साथ बदतमीजी से बात कर रहे थे, उनको फेवर करा. सो वहां पर उनके लिए रेस इंपॉर्टेंट हो गई थी, उनके लिए महिला का इशू इंपॉर्टेंट नहीं रहा था. सो इन मेनी मैटर्स आवर कंट्री इज वेरी मच अहेड ऑफ द वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या डिमांड रखी गई थी. वोटिंग, एजुकेशन, रिप्रोडक्शन, एक और बहुत महत्वपूर्ण इस समय कार्य किया गया था. मताधिकार के लिए फर्स्ट वेव में मताधिकार के लिए फाइट किया गया था, सिविल राइट्स के लिए फाइट किया गया था. देन यू हैव लीगल राइट्स के लिए, वैधानिक अधिकारों के लिए फाइट किया गया था, शिक्षा के लिए फाइट किया गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन या फिर जो आपके गर्भ संबंधी जो अधिकार हैं, राइट टू अबॉर्ट या राइट टू, आज भी आप फॉलो करेंगे, पिछले साल भी आपका एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था कि अबॉर्शन लॉज होनी चाहिए या फेवरेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. सो देयर हैज बीन, जो ये राइट टू अबॉर्ट का भी जो अधिकार है,
ये इसके लिए भी, अपने गर्भ पर भी, अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स पर के लिए भी वहां पर महिलाओं को आंदोलन चलाना पड़ा है। डिड यू गेट मी? आप सबके समझ में आ रहा है या फिर इफ इट ऑल? सर नीचे आ जाएंगे, एक नीचे वाली स्लाइड पर अगर आप आ जाएं। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? अगर आप लोग कुछ पुट अप करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। ओके ओके, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, एक महत्वपूर्ण वेव रहा है या चरण रहा है। और यहाँ पर दूसरा जो है, अगर आप देखें तो दूसरे में सेकेंड वेव की बात करते हैं तो 1960 से 1990 का दशक माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर से देखेंगे सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव हाँ 1960 ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर आ जाता है, पहले में आपके अवसर की समानता, अधिकारों की समानता की बात करें। नेक्स्ट वाले में आपकी बात आती है, उसमें जो की उसके रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, उसमें सिमोन दी बोवार को मान सकते हैं आप, शूलामत को मान सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने, सिमोन दी बोवार ने क्या बात करी थी? वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन, वन बिकम्स वन। समाज उसको महिला बना देता है, हालात उसको, या जो सामाजिक परिवेश उसको महिला बना देता है। तो यहाँ पर राइट्स, अधिकार की बात नहीं करी जाती है, यहाँ पर बात करी जाती है महिलाओं की इमेंसिपेशन की, लिबरेशन की, उनकी आजादी की, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की। किससे? पितृसत्तात्मक समाज से। पेट्रियार्की के खिलाफ सेकेंड वेव आवाज उठाता है, ठीक है। और ये जो पेट्रियार्की के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, इस टाइम पर जो वर्ग आगे आता है, इसको हम बोलते हैं रैडिकल फेमिनिस्ट। रैडिकल फेमिनिस्ट या फिर उग्र महिलावादी, या फिर उत्कट महिलावादी, या फिर आमूल परिवर्तनवादी मानते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या मांग उठाई थी? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो पुरुष सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक जो समाज है, वो अन्याय का मूल है, अन्याय करने की संस्था है। या फिर जो परिवार भी है, परिवार का जो हेड होता है, ठीक है, क्योंकि परिवार भी एक तरीके से, अगर आप मार्क्सिज्म फॉलो करें होंगे, मार्क्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? स्टेट इज एन ईवल इंस्टीट्यूशन। ईवल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? एक नकारात्मक संस्था है। क्यों? क्योंकि वो शोषण करती है, और शोषण किसके माध्यम से करती है? पूंजीवादियों के माध्यम से करती है। तो वैसा ही एटीट्यूड यहाँ पर परिवार के लिए माना गया है। परिवार एक शोषण करने वाली संस्था है, जिसका क्या है? प्रभुत्व किसका है? बागडोर सारी की सारी पुरुषों के हाथ में है। और क्योंकि बागडोर पुरुषों के हाथ में है, इसलिए ऐसे पुरुष वर्चस्ववादी संस्था का अंत हो जाना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर केट मिलेट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केट मिलेट सेकेंड वेव में रहे हैं, सेक्सुअल पॉलिटिक्स करके उनकी एक रचना रही है। और वो कहते हैं कि महिला के निजी एवं सार्वजनिक जीवन में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। जहां पर सिमोन डी बोवार किसको चैलेंज करती है, किस चीज को चुनौती देती है? इस चीज को चुनौती देती है कि बायोलॉजी इज डेस्टिनी, कि प्राणी शास्त्र ही आपकी भाग्य है, आपकी जो शारीरिक संरचना है वही आपका भविष्य निर्धारित करेगी। वो उसको चैलेंज करती है। वहीं पर जो केट मिलेट, जो दूसरी उग्र महिलावादी चिंतक है, उनका मानना है कि महिला का जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र है, जिसको आप डाइकोटमी के तहत पढ़ रहे थे, पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी के अंतर्गत पढ़ रहे थे, इन दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। सो शी गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर, पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इज पर्सनल। जो एक टैगलाइन रही है कि निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है, ठीक है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में और निजी क्षेत्र में कोई भी अंतर नहीं किया जाना चाहिए। आई होप सो आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है। इसीलिए एक और चिंतक हैं, वो इनके अकॉर्डिंग एन ओकले हैं। एन ओकले अपनी रचना सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी में बात रखती है कि सारा दोष पुरुष प्रभुत्व व्यवस्थाओं पर रखती है, तथा हर स्थल में इस slide is not you'll have ऐसा है, it gives you a brief overview of it, but there are things which I'm adding to it, ठीक है। स्लाइड में आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिया जाएगा, बट कुछ चीजें मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप उसको भी फॉलो करिए, ठीक है। इट्स नॉट दैट, द स्लाइड इज नॉट दैट वेरी इलैबोरेट, वो उतनी ज्यादा विस्तृत नहीं है, ओके। तो थोड़ी चीजें मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ओके। एन ओकले अपनी रचना जो है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी में सारा दोष पुरुष प्रभुत्व व्यवस्थाओं पर रखती है, तथा हर स्थल में इस अभिशाप को मिटा देना चाहती है। ऐसे महिलावादी नेता महिलाओं की अश्लील प्रदर्शनों की निंदा करते हैं और सिनेमा घरों तथा नाटक केंद्रों पर महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सो आउट एंड आउट, जैसे आपको मैंने वर्ड बताया था, आमूल परिवर्तनवादी या फिर रेडिकलिस्ट
जो फेमिनिस्ट हैं, आप सेकेंड वेव जो थी आपका बहुत जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी भी बोल सकते हैं, क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं, जिन्होंने पुरुष वर्चस्व को अंत करने की ठानी थी. ओके, देन यू हैव द थर्ड वेव. इट फॉलोज दैट 1990 ऑनवर्ड्स, ये आती है 1990 से ये स्टार्ट होता है. और यहाँ पर आप देखते हैं कि किस पर फोकस करने लगते हैं, जेंडर पर्सपेक्टिव. एक नई चीज आ जाती है यहाँ पर. जेंडर पर्सपेक्टिव मतलब एक नया नजरिया अपनाना, जहां पर फोकस किया जाता है इक्वल वैल्यूइंग ऑफ डिफरेंस की भिन्नताएं हैं, लेकिन भिन्नता होते हुए भी समानताएं हो सकती हैं. तो इनका फोकस क्या था कि भिन्नता प्राकृतिक है और इन्हीं प्राकृतिक भिन्नताओं को लेते हुए हम समानता एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्लियर हुआ? सो यहाँ पर आप देखेंगे मैनेजिंग डाइवर्सिटी. तो जो आपको भिन्नता लग रही है, जो डिफरेंसेस लग रहे हैं, जो डाइवर्सिटीज लग रही है, यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उनको एक्सक्लूड कर दें, उनको नगण्य मानते हुए वो एक्सेप्ट करें, उनको अपनाएं और फिर अपना काम आगे बढ़ाने की बात करते हैं. जैसे डेवलपमेंट, लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, या जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं. तो यहाँ पर थर्ड वेव को कह सकते हैं एक तरीके से काफी प्रोग्रेसिव फेज रहा है, जहां पर एक नए नजरिए से, एक नए सिर्फ विमेन पर्सपेक्टिव से नहीं, सिर्फ महिला के नजरिए से ही या महिला जो संबंधी नजरिया है सिर्फ उसी चश्मे से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि जेंडर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों को बराबरी का हक दिया जाना चाहिए. क्लियर टू एवरीवन? देन यू हैव द फोर्थ फेज. फोर्थ फेज 2006 से प्रेजेंट तक का बोलते हैं. ठीक है, और इसमें कई चीजें आ जाएंगी. सिर्फ ये चीज ही नहीं रहेगी, जितने भी आपको मैंने टर्मिनोलॉजीज या नए नए टाइप के जो फेमिनिज्म्स बताए हैं, वो सारे के सारे फोर्थ वेव में सब के सब आ जाते हैं. एक वर्ग ऐसा होता है कि पुरुष होना ही नहीं है, हम अकेले ही ठीक है. तो ये बहुत एक्सट्रीम वाला फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो फोर्थ वेव, कई लोग बोलते हैं कि थर्ड वेव तक का फेमिनिज्म अपने चरम पर पहुंच चुका था. ये जो फोर्थ वेव है, कई लोग मानते हैं कि फोर्थ वेव में आप इसके अंतर्गत अश्वेत महिलावाद भी रख सकते हैं, या फिर उत्तर आधुनिक महिलावाद भी रख सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी रख सकते हैं. लेकिन कई बार कुछ लोग मानते हैं बहुत एक्सट्रीम चले जाता है. ठीक है, और इसलिए ये आपका फोर्थ फेज तक का रहा है. ठीक है, तो ये आपको मैंने प्रोवाइड करी हैं वीडियोस, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव. ओके, आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं. नाउ यू हैव जस्ट अ सेकंड, यू हैव अनदर स्लाइड. आप यहाँ पर ये माइंड मैपिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके ब्रोशर में भी मेंशन है नेशनल वर्कशॉप के, कि वहां पर आपके अलग अलग टेक्निक्स तो सिखाएंगे ही, लेकिन साथ में इसमें क्या सिखाएंगे आपको, माइंड मैप बनाना. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मास्टर निकालिए, एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए, और उसमें किसी भी फेमिनिज्म की किसी भी एक वेव पर आप देख सकते हैं. एक सेंटर में आप, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वेव बनाया आपने, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, तो एक सेंटर पे जैसे मान लीजिए FGMC है. ठीक है, तो उसको फर्स्ट वेव सेंटर में लिया, और फिर उससे आप क्या क्या ब्रांचेस निकाल सकते हैं, उसके फीचर्स निकाल दीजिए, उसके प्रोज निकाल दीजिए, उसके कॉन्स निकाल दीजिए. तो कई चीजें आप उसमें कर सकते हैं. एंड दिस, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज फेमिनिज्म को आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के जैसे मत पढ़िए, आप ऐसे अपने आप को तैयार करिए कि एट द एंड ऑफ द डे यू कुड बिकम अ चेंज मेकर. कि आप कहीं पर भी ग्रास रूट में जाए, तृणमूल में जाए, तो कहीं पर अगर आपको लगे चेंज लाना है, उनको गाइड कर सकें. ठीक है, तो ये आप, जैसे मैंने डिप्लोमा इन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट भी परस्यू करा है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें, टेक्निक सिखाई जाती हैं. जैसे आप अगर गांव जाके अवेयरनेस, जैसे आज आप सुनते ही हैं, हरियाणा के कई गांव ऐसे हो चुके हैं कि जैसे नू है, 0 गर्ल्स है वहां पर एक गांव दूसरे गांव को अपनी बेटी नहीं देना चाहता है, या लड़कियां बिल्कुल नेक्स्ट टू 0 हो गई हैं, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड होती है. फीमेल फीटिसाइड का मतलब है लड़की को पैदा होते हुए या तो खोलते दूध में डाल दिया जाता है, या फिर उनको मार दिया जाता है. ठीक है, आज भी आप, अभी मैं हार्मफुल प्रैक्टिसेस की तरफ आऊंगी. कई ऐसी आई ओपनिंग चीजें हैं, सिर्फ भारत ही के नहीं, आप पूरे विश्व भर के हम लोग चेकआउट करेंगे. तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपने अप्रोच कैसे करना है. इफ एट ऑल यू वांट टू बी अ चेंज मेकर, इफ एट ऑल यू वांट टू बी अ काउंसलर, इफ एट ऑल यू वांट टू
impact people, अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को, now फिर your mind map will look like this. और वैसे भी ये जो mind map है, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज भी परसू कर रहे हैं, सिर्फ शोध ही में नहीं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, दिस इज अ वेरी इजी, जिसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. अगर आप एल्गोरिथम्स कंप्यूटर्स में फॉलो करते होंगे तो उसी तरीके का ये चीज है. एल्गोरिथम आपके सिंप्लीफाई कर देता है आपके प्रोग्राम्स को. माइंड मैप आपकी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही इजी एक टेक्निक है जिससे आप अपना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हर चीज को. ठीक है. एंड फॉर जैसे आप लोग रिसर्च के कर रहे हैं, कल के लेक्चर्स आपने फॉलो ही करें, हाउ टू प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस, तो लेट स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू करते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी लगाते हैं, क्वालिटी कौन से मॉडल्स यूज करते हैं, क्या स्केल यूज करना चाह रहे हैं, रेफरेंसेस कैसे करते हैं, एमएलए करना चाहते हैं, एपीए करना चाहते हैं, देन देयर आर डाइवर्स एस्पेक्ट्स टू इट, राइट. तो आप ये सारी की सारी चीजें माइंड मैप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी इजी एंड हैंडी टूल दैट यू आर बीइंग प्रोवाइडेड. अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मॉड्यूल 2 की फर्दर रीडिंग्स. अगेन आई प्रोवाइडेड यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स. इनके कवर पेजेस मैंने दिए हैं आपको टू गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑफ इट, ऑफ हाउ थिंग्स गो अबाउट. आप में से किसी को क्वेश्चन करना है, आप बता सकते हैं.